Hello students, good morning all. Welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 8, today we are doing chapter number 10 and we are doing exercise 10D today. So before that, we would revise the properties of rectangle, square and rhombus. Before this video, in my previous video, I have discussed about some particular types of quadrilateral where we discussed what is a rhombus, what is a square, what is a rectangle, and the main exercise was about parallelogram. So when we are given the quadrilateral is a rectangle, it means opposite sides are equal, all the angles are of 90 degree and diagonals of a rectangle are equal to each other. And when it is a square, then all the sides are equal, all angles are of 90 degree and diagonals are also equal. So basic difference comes here is rectangle has opposite equal side and square has all the sides are equal. Now moving towards rhombus. Rhombus has all the sides are equal but all the angles are not of 90 degree. So this is the basic difference between square and rhombus. स्क्वायर में आपके पास एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, रोम्बस में आपके पास एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, दो द साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल बट डायगोनल्स विल बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर. सो फॉर दैट in your book one table is given, that is where they have discussed all the properties of parallelogram, rectangle, square and rhombus. Page number this is 168 and this table is the summary of this chapter where all the properties have been discussed. So opposite sides are parallel, opposite sides parallel होते हैं किसमें, parallelogram में, rectangle में, square में, rhombus में. So yes kind of opposite sides are equal. So look, every rectangle will possess these properties, every parallelogram will have these properties. Wherever there is yes, it means the property is true for this particular figure. Wherever there is yes, properties are true for rectangle, for square and for rhombus. So one of the major properties that we need to check is diagonals are equal. कहाँ होते हैं आपके diagonals equal? rectangle में, square में, rhombus में diagonals are not equal. Diagonals bisect each other. Bisect each other means we have done this kind in parallelogram जहाँ पे हम equal बाइसेक्शन करते थे डायगोनल्स का. सो यस इन ऑल द फोर फिगर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, नॉट ओनली बाइसेक्शन, अब एंगल भी 90 डिग्री होगा स्क्वायर में एंड रोम्बस में. रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम विल नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल बट स्क्वायर एंड रोम्बस विल. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स. बाइसेक्ट इंटीरियर मीन्स जैसे इफ दिस इज द केस, सो ये दीज एंगल, दिस इज इंटीरियर बाइसेक्शन, इट मीन्स दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. वो कहाँ होंगे आपके पास, स्क्वायर में एंड रोम्बस में. स्क्वायर एंड रोम्बस विल पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल्स. डायगोनल्स विल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स. So these are the basic properties we are going to use to do our exercise 10D. So let's move towards exercise. I have taken a few parts, though the easy parts you will do at your own. If you face any difficulty, students, do let me know. Exercise 10D, I am taking first question. First part I am taking here. This is the figure given to you and it is given that the given figure is a rectangle. You need to find the measure of the numbered angle. आपको 1 2 3 4 5 इन मेजर्स का एंगल बताना है. सो देखिए दीज टू एंगल 4 प्लस 58, इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री. वाई, रेक्टेंगल विल पोजेस एवरी एंगल इज 90 डिग्री. सो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है. सो एंगल 4 प्लस 58 होना चाहिए 90 डिग्री. एंगल 4 की वैल्यू यू विल कैलकुलेट, इट विल कम आउट एज 32 डिग्री. So this exercise is all about the properties that we discussed. जो properties हैं उन्हीं पे based आपने यहाँ पे questions करनी है. Now अभी आपने देख लिया, ठीक है, ये एंगल 4 निकाल दिया, एंगल 3 एंड एंगल 5
ये भी इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, हमें पता है अपोजिट नॉट अपोजिट यहाँ पे, तो एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो वी विल से इट विल बी ऑफ 90 degree. Now moving towards angle 1 and 2. So here have a look. These two lines are parallel and this is your intersecting line like this. These parallel lines, this is your intersecting line. So this angle will be equal to this angle by interior alternate angles. We discussed this property in parallelogram also when lines are parallel. और ये आपका transecting line है, intersecting line है. So these two angles are interior alternate angles and they are always equal. So from here angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 58. ये अपोजिट की तरफ होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मीन्स ये इधर है लाइन के तो ये उस तरफ है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 58. तो एंगल 2 58 हो गया. एंगल 1 क्या होगा, 32 डिग्री. 1 and 4 is equal to 32 degree. Okay, so this is your one part I have taken. Second part you will do at your own. If you face any problem, students, do let me know. So second question states, in the rectangle PQRS, SR is 20 centimeter, PR is 35 centimeter. You need to find PQ and SK. Figure is given to you, naming is also done. You are asked to find PQ and SK. So this is the figure. This is a rectangle. It is given SR length is given to you, that is 20. So you are asked to find PR. PR is your diagonal of this rectangle. So this length is being a rectangle. SR is equal to PQ and PS will be equal to RQ. I told you to sign if I am using it means these two are equal. So PQ and SR, these are equal. PQ will be of 20 centimeter. Okay. Now next is PQ. आपसे पूछा था PQ you can tell opposite sides of a rectangle are equal. So PQ की लेंथ आ जाएगी आपके पास 20 क्योंकि SR given है 20. Second is asked SK. SK आपसे पूछा है SK, this length SK, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है. Now इस लेंथ को आप कैसे निकालोगे? We know diagonal bisect each other. रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट परपेंडिकुलरली. जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है यूजिंग दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स SK इज इक्वल टू KQ. SK और KQ इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्शन है. 3 lines here, 3 here. It means these two line segments are equal. SK is equal to KQ. So if I will calculate SQ and I will make it half, then I can find SK. यही करेंगे. हाफ ऑफ SQ. अगर आप SQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो SK निकल जाएगा. और SQ किसके इक्वल है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है. तो आप PR इज इक्वल टू SQ. PR की वैल्यू गिवन है आपको 35. सो PR और SQ इक्वल है तो SK की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ PR, that is 35 because these two lengths are equal. So SK will be 17.5 centimeter. Okay, so very easy. Just you need to use the simple properties of rectangle. Whatever we have learned till now, we are gonna use that. Now moving towards next question number 3. First part I am taking here. Find the value of each of the variable in these rectangles. Give brief reason. You need to explain it as well. क्यों कौन किसके equal है. So figure is given to you. You need to find the value of each variable. So variables are A, B, C, D, X and Y. These are your variables. You need to find the value of these variables. So first thing is A, B, C, D. Being a rectangle, all the angles should be of 90 degree. So angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. All is equal to 90 degree. And opposite sides are equal. You need to mention that is equal to 90 degree. Opposite sides are equal. It means X is equal to 7 and Y is equal to 4. Y being rectangle. Rectangle properties. This exercise is all about the properties. Just go through the properties, learn them, revise them and then do the questions. Second question is given to you. Figure is in front of you. आपको X and Y की वैल्यू फाइंड करनी है.
सो अभी अभी हमने डिस्कस किया था इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ये एक ट्रांजैक्टिंग लाइन है, तो एंगल y इस एंगल के इक्वल और एंगल x इसके इक्वल. सो फर्स्ट थिंग एंगल x इज इक्वल टू 55 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है जी. नाउ एंगल y कैसे लिखेंगे आप? दिस इज 55 यू हैव फाउंड, बट द होल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. y बीइंग एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. y क्या हो जाएगा? 90 माइनस x, यानी 90 माइनस 55 डिग्री. y इज इक्वल टू 35 डिग्री. इट मीन्स y की वैल्यू आपने निकाल दी क्या? 35 डिग्री. वेरी इजी. वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है. सी पार्ट यू विल डू एट योर ऑन. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन टेल मी. D part I am again taking here. This is your rectangle A, B, C. You need to find these three variables. Now look, we know diagonals of rectangle bisect each other. So B का जो लेंथ है वो 7 के इक्वल होगा. बाइसेक्शन यही होता है कि ये डायगनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. A इज इक्वल टू C. ठीक है. अब B इज इक्वल टू C है, सॉरी B इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू C. But we know one more property. What it says? Diagonals of rectangle are equal. Diagonals are equal. So it means total length of diagonal A plus C is equal to B plus 7. A plus C is equal to B plus 7. A और C equal हैं. So C को if you will put as A, so it will become 2A. B की वैल्यू आपने फाइंड की 7. 7 plus 7 14. A की वैल्यू आ गई आपके पास 7. A 7 है तो C भी क्या होगा आपके पास? 7. So very easy. Just use the property and find the correct answer. In question number 4, the given figure are rhombuses. It means ये जो आपके पास 4 फिगर हैं ये rhombus हैं. So आपको again you need to find the missing variables. इन वेरिएबल्स की आपने वैल्यू निकालनी है. रोम्बस प्रॉपर्टीज नाउ यू नीड टू यूज. रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. सो फर्स्ट सेकेंड पार्ट, सी पार्ट ऑल्सो यू कैन डू एट योर ऑन. आई एम टेकिंग द डी पार्ट हेयर. आपको एक फिगर गिवन है, यू नीड टू फाइंड ABC. ये ABC की आपने वैल्यू निकालनी है. नाउ लुक कैसे यूज करेंगे हम, देखिए. नाउ लुक, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. 2A is equal to B. This thing is clear. 2A will be equal to B. Why? Opposite angles of a rhombus. ठीक है जी. Now, diagonals of rhombus, diagonals bisect interior angles. This property we are gonna use here. So use this. This is your diagonal. This 4 sides are rhombus and this is your diagonal. It means ये जो आपका डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल्स को. इट मींस दिस इज हाफ ऑफ ए, दिस इज हाफ ऑफ ए. ये आपका पूरा एंगल ए है, सो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए. इधर सी है, इट मींस सी इज इक्वल टू 1/2a. सी इज इक्वल टू, यहां भी इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा. ये सी है तो ये भी सी है. तो देखिए अब इनको इक्वल होना पड़ेगा. अब देखो A इज होल एंगल, तो ये जो इतना सा एंगल है ये क्या होगा आपका? 1/2C, 1/2A, सॉरी, हाफ ऑफ ए. पूरा A है, A को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो A/2. सो C इज इक्वल टू A/2. डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स. सो 2A प्लस C प्लस 1/2A इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ऊपर वाली ट्राइंगल 2A प्लस A प्लस C. दिस इज हाफ ए अगेन. पूरा ए आपका ये एंगल है तो हम सिर्फ आधा एंगल कंसिडर करेंगे. ट्राइंगल में आधा एंगल यूज हो रहा है. सो 2A प्लस 1/2A प्लस C, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. सो C को आपने अगेन ए के टर्म्स में पुट कर दिया 1/2A. नाउ वी हैव चेंज द होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए. लीनियर इक्वेशन बना दिया हमने ए की फॉर्म में. टेक द एलसीएम. 2 आपने एलसीएम लिया. 4A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री. 6A/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. A की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री. दिस इज 3 6 जा 18, 60 डिग्री. ओके,
ए की वैल्यू आपने 60 निकाल ली, बी क्या है आपका, अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, तो देखो बी इज इक्वल टू 2a, सो बी इज इक्वल टू 2a, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। अब सी क्या था, सी इज 1/2a, 1/2a, दिस इज 30 डिग्री। जस्ट इफ वी हैव फाउंड वन वेरिएबल देन बाकी सब इंटर रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, बस आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है यहाँ पे। सो properties are, again I am telling, much important. Now question number 5, again ABCD is a rhombus given, you need to find BC। आपको फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है आपको, ये वाला एंगल्स 4b - 10, ये वाला एंगल आपको गिवन है 11b + 2, ये साइड गिवन है 4a + 5। ABCD रोम्बस है। तो देखिए आपसे पूछा है BC निकालो, फर्स्ट पार्ट में BC निकालना है आपने। So, उससे पहले देखिए प्रॉपर्टीज पे जस्ट डू हैव अ लुक, इफ दिस इज अ रोम्बस, सो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सो देखिए ये साइड है ए बी डी सी दोनों इक्वल है, सो 15a - 6 इज इक्वल टू 4a + 5, यस। तो देखो इसको लीनियर इक्वेशन इन ए की वेरिएबल, ए की इक्वेशन, 4a को इधर लेके आइए, ए की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे 1, ठीक है। अब पूछा था आपसे BC साइड, अब BC AB DC AD सब इक्वल हैं, तो आपने अगर एक साइड निकाल दी तो ऑल द साइड्स विल बी ऑफ सेम लेंथ। तो क्या करना है आपने, या आप AB की वैल्यू निकाल दीजिए या CD की किसी की भी वैल्यू निकाल दीजिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इधर हेयर और हेयर, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द साइड दैट इज 9। कहीं पे भी पुट कर दीजिए, सबकी लेंथ इक्वल होंगी बीइंग रोम्बस। सो BC की लेंथ आपने निकाल दी 9। इन सेकेंड पार्ट यू आर आस्क्ड टू फाइंड एंगल BCO, एंगल BCO आपने निकालना है। तो देखिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टी है, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन का मतलब है कि अगर इस तरीके से बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये एंगल सारे के सारे 90 90 90 के, 3 टोटल बनता है 360, तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो इस एंगल की वैल्यू गिवन है 11b + 2, सो पुट 11b + 2 इज इक्वल टू 90 यूजिंग प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। यू नीड टू राइट दीज प्रॉपर्टीज ताकि आपको व्हेन यू आर गोना रिवाइज द चैप्टर तो आपको वो सब चीजें याद रहें कि आपने क्यों किस चीज को कैसे लिखा था। तो आपने क्या किया, 90 डिग्री के इक्वल पुट किया एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू आपने निकाली 8। नाउ एंगल BCO, ये भी पूछा है आपसे, एंगल BCO यही तो पूछा आपसे, BCO यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है BCO, ओके, ठीक है। सो एंगल BCO निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपको गिवन है 4b - 10, सो वी गोना पुट हेयर, इसकी वैल्यू आपने निकाल दी एंगल DCO की, जिसकी वैल्यू अब देखो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BCO, वाई, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस। अभी अभी आपको बताया क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इंटीरियरली बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। सो 4b - 10 ये एंगल है तो ये एंगल भी 4b - 10 है। सो सेम वे में यहाँ पे आप पुट कर दीजिए एंगल BCO 4b - 10, ये आप मेंशन कर दीजिएगा कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस एंगल इज 4b - 10 एंड एंगल विल बी ऑफ 20 डिग्री बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B दैट यू हैव फाउंड। B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल कैलकुलेट दिस एंगल। Now moving towards question number 6. Students, you may pause the video to solve it and then you can resume it. Because combinedly if you will go through the whole exercise together फिर आप करोगे so आप भूल सकते हो. So better है just check solution for 2 questions, pause the video, do the 2 questions in your notebook and then resume again. Question number 6. Find the measures of numbered angles in each rhombus. आपको यहाँ पे रोम्बस गिवन है, आपने एंगल्स निकालने, तो देखो बता दिया आपको दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। सो रोम्बस प्रॉपर्टीज लगाते हैं। देखिए एंगल
28 डिग्री यहाँ पे गिवन है आपको, तो आपने क्या करना है, आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स इंटीरियरली बाइसेक्ट करते हैं, अभी अभी यूज भी किया है प्रॉपर्टी। सो एंगल 5 विल बी इक्वल टू 28, दोनों इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे बाइसेक्शन की वजह से, सो 5 28 होगा। नाउ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 28, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो और बाइसेक्शन है तो एंगल 2 और 3 भी इक्वल हैं। सो देखिए प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 5 28 आ गया। सिमिलरली एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 3, यहीं पे मेंशन कर देते हैं। क्यों? सिमिलरली सेम केस, इसके लिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट इनफ to tell angle 5 is of 28 degree, angle 2 is equal to angle 3. Now the sum of these two angles, interior opposite angles हैं 2 plus 3, 5 plus 28 equal होना पड़ेगा। 2 और 3 equal से, so twice of angle 2 is equal to total 56. Angle 2 will be of 28 degree. अगर एंगल 2 28 का है तो एंगल 3 भी 28 का होगा। अब एंगल 1 और 4 बच गया, इनको भी बताना है, तो एंगल 1 भी इक्वल टू एंगल 4 डिग्री, बट वैल्यू तो बतानी है 4 क्या। तो इफ यू रिमेंबर इन आवर फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये कह सकते हो, या यू कैन डू वन मोर थिंग, या तो ये कह लो या फिर एक चीज और भी कर सकते हो आप यहां से। क्या? एंगल 2 की वैल्यू आपने निकाली 28 डिग्री, ये भी आ गया 28। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल 1 प्लस 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी यूज कर सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन गया, दो एंगल्स आपको पता है, थर्ड मिसिंग एंगल यू कैन फाइंड बाय यूजिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो 1 प्लस 2 प्लस 28 इज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू भी आपको पता है 28 प्लस 28 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 124 डिग्री। 1 and 4 आर इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 124 डिग्री। सो दिस हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ you may pause the video to understand it well. Moving towards second part, figure is given, you need to find the angles. आपको सारे एंगल्स निकले। अगेन प्रॉपर्टीज, एंगल्स निकालने तो एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अभी आई टोल्ड यू इन योर बुक टेबल इज देयर, आप टेबल एक बार याद कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 50, दिस थिंग इज प्रिटी क्लियर, अपोजिट एंगल्स हैं, एक काम तो हो गया। नाउ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटीरियरली बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी एक चीज है। एक चीज था एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 5, अपोजिट वाला जो कंसेप्ट है। सो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 1 5 इक्वल है, 2 3 इक्वल्स है, वाई इंटीरियर बाइसेक्टेड एंगल, क्योंकि बाइसेक्शन से बने हैं दोनों एंगल्स, तो हमने पढ़ा था डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, तो 1 5 के इक्वल 2 3 के इक्वल। फिर वही सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लगाया, 1 प्लस 2 इज प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक इक्वेशन यहां से निकालो। सिमिलरली यू कैन फाइंड इट अनदर वे, यहां से निकालो या यहां से निकालो, बोथ द ट्राइंगल्स विल गिव यू द सेम इक्वेशन। सो मैंने दोनों करके दिखा दिया, यू नीड टू डू ओनली वन, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों तरीके से ही सेम आएगा। वाई 2 और 3 इक्वल है, 1 और 5 इक्वल है, सो बोथ विल गिव द सेम इक्वेशन। अब देखिए अब क्या हुआ, एंगल 2 और 5 भी इक्वल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हम कह रहे हैं इनको। सो यूज दिस प्रॉपर्टी, वाई वी हैव लर्न दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल साइड्स हैं तो ये क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 5, एंगल 1 इज इक्वल टू 3, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, टेबल से भी चेक कर सकते हो आप। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं तो फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल, 2 5 के इक्वल, 1 3 के इक्वल। अब देखिए 2 5 के इक्वल है, बट 5 तो 1 के भी इक्वल है, सो 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, जबकि एंगल 3 आपका एंगल 2 के इक्वल था, 2 5 के इक्वल था। सो इन शॉर्ट बाय यूजिंग दीज कंडीशंस वी कैलकुलेटेड दैट 1 और 2 3 और 5 सब ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5।
तो इस इक्वेशन में एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या किया, एंगल 2 की जगह पे पुट कर दिया एंगल 1, सो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 65। 1 की वैल्यू आ गई तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 65 डिग्री। 4 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर दी थी 50 डिग्री, ये अपोजिट वाला। बाकी इन सब की वैल्यूज निकाल दी। दो चीजें यूज की मैंने, एक तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। एंड दूसरी चीज हमने यूज की थी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जिसकी बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। I think that's enough for this video. We will cover the remaining questions in next video, students. Till the time, do the exercise and do let me know if there is any doubt. We will clear in our live classes. Thank you, students. Have a good day all.